مسیح کے بابرکت اور ہائی بخش نام میں آپ سب کو میری طرف سے اسلام۔ جی پلیز سب بیٹھ جائیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا پریز گاڈ یسوع کے نام میں ہاللیلویا ہاللیلویا جی سب کو ملی ہے؟ یہ میں نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا، لگتا نہیں ملی۔ پرستش کے وسیلہ سے یعنی کہ گیت جو گائے گئے ہیں اس کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی یا نہیں ملی؟ ملی ہے؟ تو آج خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ساؤنڈ سسٹم بھائی کے لیے، ڈھولک پلے کرنے والے بیٹے کے لیے، بھائی سنی کے لیے جو اس چرچ کے کوائر لیڈر ہیں مبشر بلاول اشتیاق، ان کے لیے زوردار تالیاں۔ کیونکہ آج بہت اچھی پرستش ہوئی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے آپ سب کو کثرت سے استعمال کرے، کیونکہ جب روح اور سچائی کے ساتھ جب زندہ خدا کے حضور ہم پرستش کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ تو جب گانے والا کہیں اور گا رہا ہے، بجانے والا کہیں اور بجا رہا ہے، تو ساؤنڈ آپریٹر والا وہ مائک کی سیدھے کر رہا ہے، تو کیا پھر ہمیں برکت ملے گی؟ جی جواب بولے۔ تو جب ساز آواز مل جاتی ہے، ایک ہو جاتے ہیں، تو خدا کا تخت لگ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خدا کا تخت لگ جاتا ہے۔ تو جب خدا کا تخت لگ جاتا ہے تو پھر جو بیج بونے والا آتا ہے، جب وہ بیج بوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جی جواب، پھر پھل ملتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے۔ تو جب زمین میں حالی نہیں سی چلایا، جب بنجر ہوگی تو کیا پھل ملے گا؟ تو میرے سسو، اس لیے آج ہم خداوند کے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر آ کر زندہ رکھا۔ میرے سسو، فیملی لیبر کمپلیکس سے آنے والی ہے، پہنچنے والی ہے، اس کے بعد ہی آپ کو دعائی دیں گے۔ خداوند کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ خدا نے بیٹے مائل کو، مبشر بلاول اشتیاق اور مجھے کل 2 جگہ پر خدا نے ہمیں بڑے بادلوں کی طرح استعمال کیا، اور خداوند کے نام کی شکرگزاری کرتے ہیں کہ خدا نے اس لائق ہمیں بنایا، اس قابل ہمیں سمجھا، کیونکہ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو ایک جسٹ ایک انسان ہے۔ پر میرے عزیزو، جب خدا کا پاک روح اس زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا، آپ کی طرح ہے۔ جب خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو پھر خدا ہمیں بڑے بادلوں کی طرح استعمال کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ مزید جیسے وہ آتے ہیں پھر وہی سنتے کلام کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ جی آئیے خدا کی زندگی میں کلام کی طرف بڑھتے ہیں، سیکھیں گے کہ حقیقی روزہ کیا ہے۔ حقیقی روزہ کیا ہے؟ یعنی کہ روزے کو عبرانی زبان میں اسے صوم کہتے ہیں۔ روزے کو عبرانی زبان میں اسے کیا کہتے ہیں؟ صوم کہتے ہیں۔ یعنی کہ روزہ جو ہے ایک ایسی قربانی ہے جس میں قربانی دینے والا اور قربانی دینے والا اور لینے والا وہ کیا ہے؟ وہ خدا کے قریب آ جاتے ہیں۔ روزہ میرے عزیزو کیا ہے؟ ایک ایسی قربانی ہے
کہ میرے शिष्यों कुर्बानी देने वाला और लेने वाला वो क्या होता है, खुदा के करीब चले जाते हैं। तो जब वो खुदा के करीब चले जाते हैं तो फिर खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें सुतराज करता है। और मेरे शिष्यों, इसलिए अक्सर लोग पूछते हैं कि पास्टर साहब रोजे का टाइम टेबल क्या है, यानी कि रोजे की औकात, यानी कि रोजे का टाइम टेबल। और मेरे शिष्यों, जब हम देखते हैं कि खुदा का जो मुकर्रर जो रोजा जो है, यानी कि एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक, अगर आप घर में जाकर पढ़िएगा अखबार उसका 23 बाब और उसकी 26 आयत से लेकर 32 आयत तक आप पढ़ेंगे जाके घर में, तो मेरे शिष्यों वाज़े लिखा हुआ है कि मेरे शिष्यों साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो यहां पर बात आ जाती है कि पिछले से पिछले हमने बुध के रोज सीखा कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह क्या करो, अपनी जरूरत अताश ना बनो। यानी कि जब तुमसे मुराद ये है कि आप 365 दिन में किसी भी टाइम आप रोजा रख सकते हैं। और मेरे शिष्यों, जब आप खुदा के हुजूर रोजा रखते हैं तो आप खुदा के करीब चले जाते हैं। तो बात आ जाती है कि एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक, यानी कि साल में 365 दिन है। यहां पर वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है, अखबार उसका 23 बाब उसकी 26 आयत से लेकर 32 आयत तक जब आप घर में पढ़ेंगे तो मेरे शिष्यों वाज़िया आपको पता चल जाएगा कि साल में एक दिन का रोजा था, यानी कि 365 दिन में एक दिन का रोजा था। कितने दिन का रोजा था? एक दिन का, साल में। यानी कि कौम बनी इसराइल जो थी, मेरे शिष्यों वो एक जगह पर जमा होते थे और खुदा के हुजूर वो अपनी जानों को दुख देते थे। अपनी जानों को क्या करते थे? वो दुख देते थे। यानी कि साल में 365 में 65 दिन होते हैं, उसमें एक दिन वो रोजा रखते थे, यानी कि कुर्बानी खुदा के हुजूर के साथ देते, कफारा होता था। क्योंकि आज तो हम आजाद हैं कि यीशु मसीह ने हमारा गुनाह का कफारा तो दे दिया, सलीब पर जान दे दी। उससे पहले कफारा होता था, कुर्बानियां दी जाती थी, और वो साल में एक दिन होता था। वो अपनी जान को धोख देते थे, कफारा खुदा के हुजूर गुजारते थे, और मेरे शिष्यों खुदा के हुजूर वो कुर्बानी देते थे। और मेरे शिष्यों, इसलिए एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक उन्होंने रोजा रखा था। अगर हम देखते हैं कि बनी इसराइल को, यानी कि दूसरा सैमुएल उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि गांबर सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखा गया था। सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखा गया था। यानी कि और वो साउल और उसके बेटे योनतन, खुदा के लोगों ने, इस्राएल के लोगों ने क्या किया? सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखा। और मेरे शिष्यों, इसी तरह आस्तर मल्का, कोई बता सकता है उसने कितने दिन का रोजा रखा था? जी जवाब भाइयों, 3 दिन का रोजा रखा था। कितने दिन का रोजा रखा था? 3 दिन का रोजा रखा था। और मेरे शिष्यों, आस्तर ने और उसकी सहेलियों ने क्या किया कि कौम बनी इसराइल के लिए 3 दिन का रोजा रखा। और इसी तरह आस्तर घर में जाके पढ़िएगा, 4 बाब उसकी 16वीं आयत है। इसी तरह मूसा और एलिया और खुदा का बेटा यीशु मसीह, इन्होंने क्या किया कि 40 दिन का क्या किया? वाक़ा किया। मूसा ने, एलिया ने और खुदा का बेटा यीशु मसीह, इन्होंने क्या किया कि 40 दिन का क्या किया?
वाक़ा किया। पहले मैं बता चुका हूं कि हमारे जो बुजुर्ग ने दीन मुसीहत उन्होंने हमारे लिए आसानियां पैदा की कि हम एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक रोजा रखते हैं। पर मेरे चीजों के बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि मूसा ने भी अपनी कौम बनी इस्राएल के लिए 40 दिन का फाका किया, एलिया ने भी 40 दिन का फाका किया, यीशु मसीह ने 40 दिन का फाका किया। और जैसा कि अगर आप देखेंगे कि मूसा ने 40 दिन का जो फाका किया था, खुरूज उसका 34 बाब उसकी 28 आयत में लिखा है। और इसी तरह एलिया ने भी 40 दिन का फाका किया था, पहला सलातीन उसका 19 बाब उसकी 8वीं आयत में। और इसी तरह खुदा का बेटा यीशु मसीह इसने भी 40 दिन का फाका किया था, मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा हुआ। अगर ये मैं डिटेल में पढ़ूंगा तो मैसेज बहुत लंबा हो जाएगा। ये घर में जरूर पढ़ा करें ताकि आपको समझ आ सके कि खुदा के खादम ने जो मैसेज दिया है उसमें क्या लिखा है। और मैसेज इसी तरह 100 बादशाह कोई बता सकता है उसने कितने दिन का रोजा रखा था? जी जवाब कितने दिन का रोजा रखा? भाई के लिए जोर करता 7 दिन का रोजा रखा। और इसी तरह 2 दिन में कुछ दिनों का रोजा रखा था। जी जी और कोई जो कुछ भी जेल में आता बताए, कोई मसला नहीं। जी भाई नहीं जी 7 दिन का रोजा रखा जो अपने लिए होता है। 2 दिन कितने दिन का रोजा रखा? 7 दिन का रोजा रखा। और मेरे शिष्यों, खुदावंत रोजे की मुद्दत को नहीं बल्कि रोजेदार की बातनी हालत पर क्या करता है? निकाह करता है। यानी कि जो लोग रोजा रखते हैं खुदावंत उसकी मुद्दत को नहीं देखते कि इसने एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक रोजा रखा है, सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखा है, या इसने 2 दिन का रोजा रखा है, या इसने 3 दिन का रोजा रखा है, या इसने 7 दिन का रोजा रखा है। पर मेरे चीजों बल्कि रोजेदार की बातनी हालत पर खुदावंत क्या करता है? निकाह करता है। हमारी बातनी हालत पर कि जिस मकसद के लिए हमने खुदा के हुजूर रोजा रखा है तो खुदा हमारी बातनी हालत पर क्या करता है? निकाह करता है। तो खुदा रोजे की मुद्दत को नहीं देखता कि आपने प्लान टाइम का प्लान रखा, रोजा नहीं। जब आपने दिलो जान के साथ, रूह और सच्चाई के साथ खुदा के हुजूर रोजा रख लिया है तो उसका अजर और बदला उस जिंदा खुदा के पास है। तो मेरे चीजों, जैसा कि आज हम सब मिलकर रोजे रख रहे हैं, कोई हफ्ते में 2 दिन रोजा रख रहा है, कोई 3 दिन रख रहा है, कुछ लोग ऐसे भी जो प्रॉपरली रोजा रख रहे हैं। मुझे भाई दुपार की रिक्वेस्ट मिली थी कि भाई दुपार जो है वो प्रॉपरली रोजे रख रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा इंसान है जो प्रॉपरली रोजे रख रहा हो? जी 1 2 आपने छोड़ दिया तो कह रहे फिर प्रॉपरली नहीं होगी। हाँ बेटी है भाई बहुत छोड़ दिया आपने। अच्छा और दो आपने पूरे रखे देख लेना। खुदा के घर में एक बेटी और एक बेटा है जो प्रॉपरली रोजे रख रहे हैं। और मेरे चीजों, हम खुदा के मजहबा पर यह भी कह सकते हैं कि हम भी हफ्ते में 2 दिन रोजा रख रहे हैं। कितने रोजे रख रहे हैं? हफ्ते में 2 दिन, यानी कि बुध और जुम्मा 2 दिन रोजे रखते हैं। क्योंकि खुदा के मजहबा पर इंसान झूठ नहीं बोल सकता। और मेरे चीजों, खुदा आपको बरकत है। जो बेटी जो बेटा रोजे रख रहे हैं, खुदा इनको बरकत है। रोजे का अजर और बदला कि अगर आप खुदा के हुजूर रोजा रख रहे हैं तो उसका अजर और बदला कौन देता है? जी कौन देता है? खुदा देता है। और मेरे चीजों, ये 9 नेम के हैं। अगर आप खुदा के हुजूर
रोजा रखते हैं, ये बच्चे शोर कर रहे हैं, जो पास बैठे होते हैं इनको समझाया करो। क्या लिखा कि तेरी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाएगी, तेरी आवाज आलमे बाला पर क्या होगी, सुनी जाएगी। और मेरे शिष्यों, अगर आप रोजेदार हैं, खुदा इसका जरूर आपको अजर और बदला देता है। आपकी आवाज जो है ये आलमे बाला पर सुनी जाएगी। जब आप रोजा रखकर खुदा के हुजूर झुक जाते हैं, दुआ करते हैं, तो आपकी आवाज जो है वो आलमे बाला पर सुनी जाएगी और खुदा आपकी आवाज पर कान लगा लेगा कि मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, मुझे याद कर रहा है। वो हमारी आवाज पर कान लगा लेता है और वो हमें बरकत देता है, वो हमें सरफराज करता है। और इसी तरह नंबर 2 है कि तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। तेरी रोशनी क्या होगी, सुबह की मानद फूट निकलेगी। ये खुदावंद की तरफ से बरकत मिलती है जब हम रोजे में ठहर कर खुदा को याद करते हैं। नंबर 3 है कि तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी। तेरी सेहत की तरक्की जल्द क्या होगी, ज़ाहिर होगी। जब हम रोजे में ठहर जाते हैं, कुछ लोगों का चेहरा जो है मुरझाया होता है और कुछ लोगों के चेहरे पर उदासी होती है। और मेरे जिसको कुछ लोग जब रोजा रख लेते हैं तो उनके चेहरों पर रौनक होती है। उनके चेहरों पर क्या होती है, रौनक होती है। क्यों? खुदा उनके साथ होता है, खुदा उनको दिलेरी देता है, उनको पावर देता है, उनको मस्सा देता है, जोर देता है। इसलिए मेरे शिष्यों, तेरी सेहत की तरक्की जल्द ज़ाहिर होगी। जो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं तो उनके चेहरों पर रौनक होती है। कुछ लोग पूछते हैं, भाई तुसी बड़े सोहने होते जा रहे हैं। क्या होता है कि वो खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, ईमानदारी के साथ चलते हैं। उनके चेहरों पर खुदा का नूर होता है, उनके चेहरों पर खुदावंद की रौनक होती है। इसलिए मेरे शिष्यों, जब हम खुदा के हुजूर झुकते हैं, दुआ करते हैं, तो फिर खुदा हमें बरकत देता है। और मेरे शिष्यों, इसलिए तेरी सदाकत, तेरी हरवावल, खुदावंद का जलाल तेरा चढ़ावल होगा। तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी तेरगी दोपहर की मानद होगी। खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा। खुदावंद सदा तेरी क्या करेगा, रहनुमाई करेगा। जब हम रोजेदार हैं, रोजा हमने रख लिया है, तो फिर खुदा हमारी रहनुमाई करता है, खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें सरफराज करता है। इसलिए क्या, और कुशक साली में तुझे क्या करेगा, सैर करेगा, सैर कराएगा। खुशक साली में कि जो जमीन बंजर हो जाती है, खुशक साली, यहां पर कुछ भी नहीं, तो खुदा क्या करता है, सैर करता है। सैर असूदा, सैर नहीं, सैर असूदा, यानी कि सैर करता है। तो जहां पर हम रोजा रख लेते हैं तो फिर खुदा हमें सैर असूदा करता है, खुदा हमें बरकत देता है, खुदा हमें सरफराज करता है। तो इसलिए मेरे जीसो, जब हम अपने जिंदा खुदा के हुजूर झुकते हैं, दुआ करते हैं, तो फिर खुदा हमें बरकत देता है। खुदा हमें अच्छी अच्छी चीजों से सैर असूदा करता है। आपको नहीं पता होता कि खुदा कहां कहां से हमारे लिए मुहैया कर रहा है। क्या आपको पता होता है? जी जब बोले, आपको नहीं पता होता। खुदा आपके लिए वसाइल पैदा करता है, खुदावंद आपकी मदद करता है, खुदा आपको अच्छी अच्छी चीजों से क्या करता है, सैर असूदा करता है, आपके लिए मुहैया करता है। क्योंकि आप खुदा के लोग हैं, शाही कहनों का फिरका है, खुदा के खास एक उम्मत और मलकियत। और मेरे शिष्यों, लिखा कि तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। तेरी हड्डियों को क्या करेगा, कुव्वत बख्शेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं
میری ہڈیاں بڑی کمزور ہو گئی ہیں، پر صاحب میرے واسطے دعا کریں، میری ہڈیاں کی ہو گئی ہیں کمزور ہو گئی ہیں، پر خدا کی طرف سے برکت مل رہی ہے، اجر اور بدلہ مل رہا ہے کہ جب ہم نے خدا کے حضور روزہ رکھ لیا ہے تو یہ خداوند کی طرف سے ہمیں برکت مل رہی ہے کہ تیری ہڈیوں کے کیا ہوگا، قوت بخشے گی، پھر خدا ہماری ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، خدا ہمیں پاور دیتا ہے، خدا ہمیں مزہ دیتا ہے، وہ ہمیں زور دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا کے حضور جھکے تو صحیح، ارادہ کرے تو صحیح۔ کل جب دوپہر کی ٹائم مجھے کال آئی کہ پاسٹر صاحب بیٹے کی طبیعت بڑی خراب ہے، تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری بھی طبیعت اس وقت خراب ہوگی؟ کھانسی جب سٹارٹ ہوتی تھی کھانسی نہیں رکتی تھی، نزلہ پانی کی طرح آ رہا تھا، بستر میں لیٹا ہوا تھا، تو جب مجھے کال آئی تو میں نے ایک بار تو ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں چرچ میں لے کر آئیں، تو میں نے کہا کہ چلے آپ ایسا کریں چرچ میں لے کر آئیں، یہاں پر کوائر بھی ہے، ڈھولک والا بھی ہے، بلاول بھائی بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو آپ ادھر آ جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بلاول بھائی کو کال کی، کہہ رہے کہ آپ پاسٹر صاحب کو لے کر ادھر ہی آ جائیں۔ تو پھر بات آ جاتی ہے کہ ہم خدا کی خدمت کے لیے انکار نہیں کر سکتے۔ میں اکثر یہی بتاتا ہوں کہ خدا کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو خدا ان کو بیٹھنے نہیں دیتا، خدا ان کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، خدا ان کو پاور دیتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، تو میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا کتنا پریشان ہو، پوری فیملی پریشان ہے، ہمیں جانا چاہیے، آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تو جب وہاں پر جا کر ہم نے 1.5 گھنٹہ پرستش کی دعا کی تو ایک بار بھی کھانسی نہیں آئی، اور خدا نے ہمیں پاور اتنی دی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں کہ نزلہ زکام یا کھانسی ہے کہ نہیں ہے۔ اور میرے عزیزوں، جیسے ہی دعا کلوز کی اس کے بعد کھانسی سٹارٹ، اس کے بعد کیا ہوا، کھانسی سٹارٹ۔ پر جو خدا نے ہم سے کام لینا تھا اس نے لے لیا ہم سے، بے شک ہم بیمار ہیں، پریشان ہیں، خدا نے جو ہم سے کام لینا ہے وہ لے لیتا ہے۔ تو بات آ جاتی ہے پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے، اور اس کے بعد تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ کتنی بڑی برکت میں رہی، یہ خداوند کی طرف سے جو روزے دار ہیں، جو خدا کے حضور روزہ رکھتے ہیں، خداوند کی طرف سے یہ برکت مل رہی ہے، اس کا اجر اور بدلہ مل رہا ہے کہ تو سیراب باغ کی مانند ہوگا، اور لکھا ہے اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چشمے سے پانی سوکھ جائے؟ چلتا رہتا ہے نا، 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو برکت مل رہی ہے، یہ اس کا روزے کا جو روزے دار ہے اس کا اجر اور بدلہ مل رہا ہے کہ خدا کیا کرتا ہے، اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ آپ ایک چشمے کی طرح ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں کبھی برکت ختم نہیں ہوگی، خداوند آپ کی برکت کو ملٹی پلائی کرتا جائے گا، خداوند آپ کو بڑھاتا جائے گا، خداوند آپ کو برکت دیتا جائے گا، خدا آپ کو سرفراز کرتا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، جب آپ نے خدا کے حضور روزہ رکھا ہے تو خدا کے حضور جب جھکتے ہیں تو پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ تو جب ہم نے خدا کے حضور روزہ تو رکھ لیا ہے، سارا دن ہم نے سو کے گزار دیا، تو پھر یہ برکت ملے گی، اس کا اجر اور بدلہ ملے گا؟ جی تو بات بولے۔ تو اگر ہم نے خدا کے حضور روزہ رکھ لیا ہے تو میرے عزیزو پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے، خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب آپ خدا کے مسا کو محسوس کریں گے، یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بڑی گہرائی کی باتیں ہیں۔ اور میرے عزیزو، جب آپ خدا کے حضور روزہ رکھ لیتے ہیں، جب خدا کے حضور آتے ہیں، جب آپ روح اور سچائی کے ساتھ اس کے حضور پرستش کریں گے، تو بے شک آپ بیمار ہوں گے،
परेशान होंगे तो आपके बदन में से वो बीमारी, वो परेशानी, वो यीशु के नाम से आउट हो जाए। जब अपने जिंदा खुदा के हुजूर झुकेंगे। आज जब प्रस्तुत हो रही थी तो मुझे प्रस्तुत की वजह से बड़ी बरकत मिली। मैं खड़ा हुआ था और मेरे जिसो जब प्रस्तुत होती तो आप भी रूह और जान के साथ खुदा के हुजूर प्रस्तुत किया करें, आंखें बंद करके खुदा के हुजूर प्रस्तुत किया करें। उसके वसीला से आपको बरकत मिलेगी। आपकी बॉडी बेशक भारी है, आपके सर पे बोझ है, कंधों पे बोझ है, तो जब आप रूह और सच्चाई के साथ मेरे जिसो प्रस्तुत करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो एकदम हल्की हो जाएगी। हालेलुया, ये तजर्बे की बात है। तो मेरे जिसो इसलिए मेरे साथ खुदा की जिंदगी बस कलाम में से निकालिएगा जिसाया 58 बाब निकाले, जिसाया 58 बाब और उसकी 3 ऐसे देखते हैं। सो खुदा की कलाम में लिखा है, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कहलाते हो। वो कहते कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो। ये सवाल जवाब हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है जी? मैंने तो जो करें ये सवाल जवाब हो रहे हैं। खुदा की कलाम में लिखा है कि वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो। हमने रोजा तो रखा हुआ है पर हम अपनी खुशी के तालब रहते हैं। पर मेरे चीजों हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि अगर हमने खुदा के हुजूर रोजा तो रखा हुआ है, हमें बचाए कि हम अपनी खुशी के तालब हो जाए, बल्कि हमने अपने जिंदा खुदा के हुजूर हमने झुकना है, उसके हुजूर हमने दुआ करनी। तो मेरे शिशो हमेशा हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। और खुदा के कलाम लिखा है कि जबकि तू ख्याल में नहीं लाता, देखो तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। हम रोजा इसलिए रखते हैं खुदा के नाम में कि झगड़ा रगड़ा करो, शरारत के मुक्के मारो। पर मेरे शिशो हमने ये रोजा नहीं रखना कि हम रोजा रख के झगड़ा रगड़ा करें, शरारत के मुक्के मारे। पर खुदा के कलाम में लिखा है कि बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। जब हम खुदा के हुजूर रोजा रख लेते हैं तो हमारी आवाज जो है वो आलमे बाला पर सुनी जाए। जब हम अपने जिंदा खुदा के हुजूर झुकेंगे, दुआ करेंगे, फिर खुदा हमें बरकत देगा, खुदा हमें सरफराज करेगा। इसलिए मेरे जीसो खुदा के कलाम के बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो तुझको पसंद है? ऐसा दिन कि मैं आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए। खुदा की खादर पास्टर आसिफ बेग ने कुछ बताया था जौ के मतलब से, याद है किसी को? जी जवाब बोले, किसी को याद है कि जौ की तरह झुकाए? जौ एक दरख्त होता है और मेरे शिशो जब हवा आती है तो वो बिल्कुल झुक जाता है। इसी तरह आज हमें भी जौ की तरह झुकने की जरूरत है, क्योंकि हमने खुदा के हुजूर रोजा रख लिया है तो हमें जौ की तरह खुदा के हुजूर हमें झुकने की जरूरत है। तो जब हम जौ की तरह खुदा
चीजों, तो जब हम रोजा को हमने रख लिया है तो हम हमारे अंदर अक्कड़ हो, गरूर हो, तकब्बर हो, झगड़ा रगड़ा हो, शरारत के मुक्के मारे, तो फिर क्या ये रोजा है? जी जनाब बोले नहीं। खुदा की कलाम लिखा है कि ऐसा दिन कि उसमें आप अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए, क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा को मकबूल हो? आगे बड़ी खूबसूरत आयत है, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं। हमने सीखना है कि खुदा कौन सा रोजा चाहता है। खुदा के कलाम लिखा है ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करे, बल्कि हर एक को जुए को तोड़ डाले। तो मेरे जीजों, जब आपने जिंदा खुदा के हुजूर रोजा रख लेते हैं, अपने आप को जौ की तरह झुका लेते हैं, तो फिर खुदा आपको इस्तेमाल करता है। आप जुए बंधन खुदा आपके विश्वास से भी खोल सकता है, जुए बंधनों को तोड़ सकता है। पर जब आप खुदा के लोग हैं, आप खुदा के साथ वफादारी के साथ ईमानदारी के साथ चलते हैं, फिर खुदा आपको बरकत देता है, अपने जलाल के लिए आपको कसरत से इस्तेमाल करता है। जब जौ की तरह झुकाएंगे, तो अगर हम जौ की तरह झुका ही नहीं रहे तो फिर हमें बरकत नहीं मिलेगी। मेरे साथ खुदा की जिंदगी में कलाम में से निकालिएगा योएल नबी का सहीफा, उसका 2 बाब और उसकी 12वीं और 13वीं आयत है। खुदा की कलाम लिखा है कि लेकिन खुदावंद फरमाता है, आप भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और किरिया उजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीमो मेहरबान कहर करने में धीमा और शफकत में गनी और साब नासिल करने से पास रहता है। लेकिन खुदा फरमाता है कि आप भी पूरे दिल से मुराद ये है कि अगर हमने रोजा रख लिया है तो हम दिखावे का रोजा रखते हैं। पूरे दिल से मुराद ये है कि अभी हमने रोजा रख लिया है तो हम एक दूसरे को बताते हैं कि मैं आज रोजेदार हूं, मुझे छेड़ना नहीं है, मुझे उठाना नहीं है। मम्मा जी मैंने आज रोजा रखा, मुझे उठाना नहीं है, मैंने आज रेस्ट करनी है, मैंने रोजा रखा हुआ है। तो क्या ये रोजा है? क्या लिखा है खुदा कलाम में कि लेकिन खुदावंद फरमाता है कि आप भी पूरे दिल से और रोजा रखकर किरिया उजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को क्या करो, चाक करके। खुदा हमारे कपड़ों को नहीं देखता कि इसने आज कौन सा सूट पहना हुआ है, खुदा हमारे दिलों को देखता है। तो जब खुदा हमारे दिलों को देखता है तो मेरे जीजों, जब आपने खुदा के हुजूर रोजा रख लिया है तो अपना दिल भी खुदा को दे दो। तो जब अपना दिल ही खुदा को नहीं दे रहे तो रोजा रखने का भी कोई फायदा नहीं। तो दिल किसी और को दिया हुआ है, ऊपर से रोजा रखा हुआ है तो दिल किसी और को दिया हुआ है, तो मेरे जीजों वो भी रोजा रखने का भी कोई फायदा नहीं। खुदा हमारे दिल में आना चाहता है। खुदा क्या करना चाहता है? वो हमारे दिल में आना चाहता है। वो कहता है कि अपने दिल का दरवाजा खोल, मैं तेरे दिल में आना चाहता हूं। पर हमने क्या किया हुआ है? दिल के दरवाजे को कुंडी लगाई है। किसमें? यीशु मसीह ना आए, कोई और आ जाए तो आ जाए, पर यीशु मसीह ना आए, कोट के कुंडी लाई है ताकि खोल नहीं सके कोई। पर मेरे शिशु ऐसा नहीं, आप जब दिल का दरवाजा खोलेंगे तो यीशु मसीह जब आपके दिल में आ जाएगा तो वो आपको बरकतों से, नेमतों से आपको सरफराज करेगा। हालेलुया। तो मेरे शिशु इसलिए हमें अपने जिंदा खुदा के पास आने की जरूरत है। इसलिए मेरे शिशु, जब हम देखते हैं
इसी दूसरे बाब की 15वीं आयत में कि सियोन में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन क्या करो, मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल कराम करो, तुम लोगों को जमा करो। यानी कि सियोन में नरसिंगा फूंको, रोजे के लिए एक दिन मुकद्दस करो। ये जरूरी नहीं कि अभी 40 रोजे आए हैं तभी हम रोजा रखें। मैं पहले बता चुका हूं कि साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो आप जब भी किसी टाइम भी आप रोजा रख सकते हैं। आप हफ्ते में एक दिन रोजा रख सकते हैं, 2 दिन भी रोजा रख सकते हैं, कोई मना नहीं है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि सियोन में नरसिंगा फूंको और रोजे के लिए एक दिन क्या करो, मुकद्दस करो। वो आपने ठहराना है। हफ्ते में सारे दिन यीशु के हैं। जरूरी नहीं कि आपने जुम्मे का रोजा रखना है या बुध का ही रखना है या मंगल का रोजा रखना है या जुमेरात का रोजा रखना है। किसी टाइम भी आप रोजा, इतवार का भी रोजा रख सकते हैं, मना नहीं है। इसलिए मेरे चीजों खुदा के कलाम में लिखा कि मुकद्दस महफिल कराम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीर ख्वारों को क्या करो, फराहम करो। और मेरे चीजों हमें खुदा के हुजूर में झुकने की जरूरत है। हमें एक दिन खुदा के हुजूर ठहराने की जरूरत है कि जिस दिन हम खुदा के हुजूर रोजा रखते हैं तो ताकि हम खुदा के हुजूर झुके और अपनी बरकत को, अपनी शिफा को, अपने मौजूद को क्या करें, रिसीव करने वाले बन सके। और मेरे चीजों अगर हम खुदा के हुजूर रोजा रखते हैं तो हमारी आवाज कहां जाती है, कहां जाती है। तो अगर हम यूना की मिसाल आप सबने सुनी होगी, क्या है जी, जवाब बोले। नहीं, रोजे की बात हो रही जी। नैनवा के लोगों ने क्या किया, खुदा के हुजूर रोजा रखा। और मेरे जीजो बात आ जाती है कि उन्होंने खुदा के इरादे को बदल दिया। खुदा ने अपने बंदा यूना को तैयार किया कि जाकर नैनवा के मुल्क में, उस शहर में जाकर ये मनादी कर कि 40 रोज के बाद नैनवा शहर बर्बाद किया जाएगा। तो नैनवा के लोगों ने क्या किया जी, जवाब बोले, क्या किया, रोजा रखा जी। अगर आज खुदा का खादम कह दे और भाई हमारे ऊपर कोई परेशानी है, टेंशन है, आप रोजे में ठहर जाए, तो हम एक कान से सुनते हैं, दूसरी कान से निकाल देते हैं। रोजे में ठहरना पसंद नहीं करते। तो अगर हम खुदा के हुजूर रोजे में ठहर जाते हैं तो हमारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाएगी। इसलिए मेरे जीजो खुदा के हुजूर हमें रोजा रखने की जरूरत है कि नैनवा के लोगों ने खुदा के इरादे को रोजे के वसीला से बदल दिया। हालेलुया। तो मेरे जीजो क्या आज हम इंसान के इरादे को नहीं बदल सकते, बल्कि नैनवा के लोगों ने खुदा के इरादे को बदल दिया रोजे के वसीला से। तो क्या खुदा ने नैनवा के शहर को बर्बाद किया जी, जवाब बोले, नहीं बर्बाद किया, बल्कि खुदा ने क्या किया, उनको बचा दिया। जो खुदा ने उनके ऊपर अजाब लेकर आना था, खुदा उसमें से वो बाज आया। और मेरे सीसो रोजा, क्योंकि ये बदन की कुर्बानी है, तो जब हम बदन की कुर्बानी खुदा के हुजूर देते हैं तो हम खुदा के करीब चले जाते हैं। तो जब खुदा के करीब चले जाते हैं तो जो कुछ भी आप ईमान से मांगोगे, खुदा आपके लिए वो दरवाजा खोल देगा। तो मेरे जीजो मांगे तो सही रोजा रखकर, तो रोजा रख के जब हम सोए रहेंगे तो फिर तो नहीं उसका अजर मिलेगा, उसका बदला मिलेगा। तो अगर आपने रोजा रखा हुआ है तो उसके हुजूर झुके, दुआ करें और खुदावंद से कहें
کہ خدا یسوع میرے روزے کو باخور کی ایمانند قبول کر اور اس کا اجر اور بدلہ میں نے تیرے سے لینا ہے. تو پھر خدا دیتا ہے. خدا اس بیٹی کو اس بیٹے کو برکت دیتا ہے, ان کو سرفراز کرتا ہے. ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے, ان کے چہرے مرجھائے نہیں ہوتے, اداس نہیں ہوتے, ان کے چہروں پر رونق ہوتی ہے. آپ ججمنٹ بھی نہیں کرتے, محسوس بھی نہیں کر سکتے کہ اس بیٹے نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ ریاکاروں کی طرح اپنی صورت داس بنائیں گے تو پھر زمین سے اس کا اجر اور بدلہ ملے گا, آسمانی باپ سے نہیں ملے گا. کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت داس نہ بنا. وہ اپنے منہ کو بگاڑتے ہیں تاکہ اپنے چہرے کو اداس بناتے تاکہ لوگ جانے کہ میں روزے دار ہوں, اور لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اپنا اجر پا چکے. پر میرے عزیزو, جو باپ جو ہمیں پوشیدگی میں دیکھ رہا ہے, جو آسمانی باپ جو ہے وہ آپ کو پوشیدگی میں دیکھ رہا ہے کہ اس بیٹی نے روزہ رکھا ہوا ہے, میں نے اس کا کیا کرنا ہے, اس کا اجر اور بدلہ دینا ہے. تو خدا ضرور آپ کو اس کے روزے کا اجر اور بدلہ دے گا جب آپ روح اور سچائی کے ساتھ خدا کی پرستش کریں گے, دل و جان کے ساتھ خدا کے حضور جھکیں گے, دعا کریں گے, تو یقیناً خدا آپ کو ضرور برکت دے گا. سو اسلام کی وجہ سے خدا آپ کو اور مجھے برکت دے. آئیے سب اپنے بات کریں اور خدا کے لیے دعا کریں.